analytics, it's analysis is just not a part of the job. Okay. Presentation is also a part of this. So you need to prepare some presentations. We also learn about the power presentations. Okay, PPT Okay. and Okay. Google Slide also. So we can understand how we design a chart, how we choose a chart, how we show the trends of the market shares, market trend. And the next one is, if we look about we also learn about the how we decide the sales figure, predict the sales figure, how we increase the market, how we select the targets, what is the next target. These are the parts of the analytics. Okay. So Okay. we use the tools for all these stuff. We use different kinds of tools. Okay. Okay. So there is a lot of things, and you need to learn on a lot of things like Python, SQL, Tableau, Power BI, Advanced Excel. Okay. Any other requirement? Any other specific requirement? Not really, but it's like I think the machine learning is also part of the course, but I would just love to know about that also. Like, it's okay. Okay. So you are from which university? But I completed my bachelor's in 2021 from University of Delhi. But now I'm gonna study in US for masters. Okay. For that, I And need this. Yeah. okay. So I think you just share your syllabus also. Okay. So I'll go with Okay. because I have a syllabus of Sterling University and one more university is there. So I have the syllabus. So let me check if there is any other requirement. So I will suggest you. Okay, you have to work on Okay. the projects most of the time because there is just a lot of assignments which you have to perform in your university. Okay, Okay. you have to more concentrate on the basic part first of all because they are mostly concentrated on the basic level. Okay. 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 Hanit, are you comfortable for both language, Hindi or English? Yes. Yeah. Okay, that's great. Hi, Yashwant. Hello. Hi. So you are also come for that. Yeah. Okay. So यशवंत थोड़ा सा अपना प्रोफाइल मेरे को बताइए आप. I'm sorry, your voice is not audible. आप यशवंत थोड़ा सा loudly बोलना. लैपटॉप करके वो. रिंकी, आपको वॉइस आ रही है? विनीत सर. यस, रिंकी रिंकी आप अनम्यूट करो अपने आप को. Please unmute yourself. मेरा इंटरेक्शन गाइस, I'll tell you one thing. आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन. ठीक है, मैं बहुत आराम से बातचीत करके पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो आई डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स. और मैं चाहता हूँ कि मेरे सेशन में आप लोग है ना अनम्यूट करके आराम से वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो आपको जब मैं ट्रेंड करूँ या कोई भी चीज हम लोग प्रोसेस कर रहे हो तो यू नीड टू कम्युनिकेट विथ मी. ओके, तो जितना आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे, जितना वर्कआउट करोगे, जितना आप मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, उतना आपके लिए बेटर है. ओके ओके गाइस. ओके रिंकी, आपके अगर नेटवर्क इशू है तो फिर आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे? आपके जो डाउट्स थे, हाउ कैन आई सॉल्व दीज डाउट? कैसे मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा? बाय चैट. ठीक है, आप क्वेश्चन डालते जाओ चैट में, हम लोग पिकअप करते जाएंगे एंड क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको करते जाऊंगा. ओके, you put your questions like. Okay, Harnit. So, Harnit and Rinki. So, मैं exactly है ना, I'm not taking this classroom as a demo. Okay. Okay. So, I start 10 particular tool और मैं आपको उस टूल का पूरा कंप्लीट. अच्छा, आप लोगों को पता है ना what is data analysis, data science, what is the Yeah. difference in both of them? Can you explain it one more time, please? Yes, What's the difference? sure. So, I'll share my screen. Just give a moment. Okay, I have a slide. Let me check. So
स्लाइड से क्या होगा ना कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं Okay. एग्जैक्टली आपको क्या चीज बताने वाला हूँ. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स में क्या होता है, एंड द सेकंड वन इज द एआई पार्ट. ओके, सो क्या होता है मार्केट में, एआई इज व्हाट, मैक्सिमम लोग एआई को क्या बोलते हैं, इट्स एन चैट जीपीटी. Okay, what? You can use this Siri, ChatGPT, or Okay. Gemini. Yes, these are the part of AI too. AI, okay, and there is a lot of AI tools available in the market. Copilot, right? So Okay. ये सब आपके AI form, AI. These are the AI tools. But AI is what? अगर आप लर्निंग करने जाओगे तो AI है क्या मार्केट में, उसको आपको समझना है. तो ये स्लाइड आपको आपको हेल्प आउट करेगा इन सारी चीजों को समझने के लिए. ओके, सो एक वर्ड है एंड दैट वर्ड इज रोल आउट इन द होल मार्केट. दैट वर्ड इज व्हाट, डेटा साइंस. ओके, सो अगर मैं बहुत बेसिक और ना जीरो लेवल फॉर्मेट में आपको डेटा साइंस बताऊं, व्हाट इज डेटा साइंस, whenever you are playing with your data, playing in the sense you are just analyze something, right? You are just prepare something, like आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, राइट? सो कोई भी चीज आप डेटा के साथ में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो विच गिव्स यू प्रॉपर आंसर और विच गिव्स यू प्रॉपर एनालिसिस. लाइक फॉर एग्जांपल, आप हरनीत आप बाहर रह रहे हो, लाइक आई एम आल्सो ट्रैवलिंग अ लॉट, तो आई कैन ट्रैक माय कंप्लीट फाइनेंस कि एग्जैक्टली मैं होल मंथ किस तरीके से अपना स्पेंड कर रहा हूँ. ठीक है, Okay. वी कैन फिगर आउट कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर स्पेंड ज्यादा कर रहा हूँ, कहाँ मुझे कंट्रोल करना है, और मैं सेविंग्स कितना परसेंट कर पा रहा हूँ. वी कैन इजिली एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, राइट? सो whenever we are doing something, some calculation and something, some analysis with the data, that is called what, data science. Yes. Okay, so this is a basic definition which is completely justify the data science word. The next part is what is data analytics in this, what is machine learning, what is the role of machine learning in the data science, what is the role of what आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ डेटा साइंस. अभी मैं डेटा साइंस के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो क्या रोल क्या है इसका, कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. मैं टेक्नोलॉजीज भी आपको बताऊंगा एंड व्हाट आर द पोजीशंस इन द मार्केट. ठीक है, इंटरनेशनली क्या क्या पोजीशंस आपके पास अवेलेबल होती है, व्हाट इज द एक्चुअल सैलरी रेंज विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, क्या है. इंडिया का मैं आपको रियलिटी बता दूंगा बिकॉज आई एम वर्किंग इन इंडिया, एंड इंडिया के बाहर मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं. उनके अकॉर्डिंगली जो उनसे मेरे को डेटा मिला उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी बता दूंगा. दैट इज कंप्लीटली रियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, वो नहीं होगा जो इंस्टाग्राम के रील्स और इन सब चीजों पे दिखाते हैं. मैं आपको रियल स्टैटिस्टिक्स बता दूंगा. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ वीडियो. ठीक है, so you just go through this particular video. That video is completely give you complete clearance of data analytics, machine learning and artificial intelligence. And the video you can search on YouTube. That one is Google Tulip. Okay, ये आप सर्च आउट कर सकते हो. just go through this video once, आपको exactly पता चल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कहाँ है, मशीन लर्निंग कहाँ है एंड एआई कहाँ पर है. ओके, तो इससे आपको मैक्सिमम चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. नाउ we are going to discuss about the data science. Data science is a blend of various tools, algorithms and machine learning principles with the goal to discover hidden pattern from the raw data. Like for example, मैंने आपको एक जर्नल डेटा अवेलेबल करा दिया स्टोर का, एंड मेरा एक मार्ट है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स ऑन अ डेली बेसिस. मेरे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है एंड मेरे मार्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1000+ आर्टिकल है.
आर्टिकल, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकल. आर्टिकल इज व्हाट, प्रोडक्ट. ठीक है, हम टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल इन द सेंस इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में उसको आर्टिकल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्ट. सो आपके पास प्रोडक्ट 1000 समथिंग प्रोडक्ट है, एंड आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन टू यू कि यार मेरे को है ना कौन सा प्रोडक्ट किस पोजीशन पे रखना है अपने मार्ट में, कहाँ रखूं. या फिर मैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कौन से मेरे बैच प्रोडक्ट हैं जो रनिंग मोड में रहते हैं और कौन से प्रोडक्ट हैं जो मुझे हटाने हैं. ओके, सो ये क्या होता है कि पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस होता है. दैट कंप्लीट एनालिसिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा साइंस. सो यू फॉर दिस एनालिसिस, जो मैंने एक छोटी सी बात बोली, कौन से प्रोडक्ट रखने हैं कौन से प्रोडक्ट हटाने हैं अपने मार्ट में से. सो फॉर दैट पर्पस यू नीड सम कंप्यूटर साइंस नॉलेज. कंप्यूटर साइंस नॉलेज इन द सेंस आपको कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेसिक बैकबोन ऑफ द डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस फील्ड इज व्हाट, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो जब मैं आपको ट्रेंड करूंगा इस चीज में, तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंप्लीट नॉलेज मैं आपको डिलीवर करूंगा. ठीक है, एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, और कॉपी पर जैसे मैथ्स की क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वैसे हम सॉल्व करके देखेंगे ये आंसर रिजल्ट क्या हो रहा है. ठीक है, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे whenever we are processing large amount of data like 50,000, 30,000, 1 lakh, 2 lakh, 10 lakh something data, so we use some software to analyze the data. Okay, but छोटे मोटे डेटा पे for the mathematical purpose I give you a small questions, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो you can easily understand कि भाई वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होता कैसे है, स्टैटिस्टिक्स में इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, मुझे इससे क्या आउटपुट मिलेगा. सो वी कैन आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर रिसर्च. ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अक्सर लोग मार्केट में, जब भी मार्केट में जाते हैं, एंड एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि सर मैंने इंटरव्यू दिया, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ, और मेरे को डेटा एनालिटिक्स में मेरे को एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, सिक्वल आई नो पाइथन, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट मैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ. व्हाई? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम लोग एज अ डेटा एनालिटिक्स नॉलेज के साथ में मिस कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एन डोमेन नॉलेज. डोमेन नॉलेज जैसे हरनीत मैंने आपको अभी बताया, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सेल्स प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग एनालिसिस प्रोजेक्ट्स, कस्टमर सेगमेंटेशन. ये क्या होता है, क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना होता है. On that basis, we can increase our salary packages in the market. Okay. So जो packages और market में अलग stand करना है आपको, और एक अलग confidence चाहिए ना data analytics field, so you need to understand what is the domain knowledge. Okay. तो आपको domain knowledge भी होनी चाहिए. Clear? Okay. So this is the most important thing. ये तीन चीजें हैं. After the complete research, we can easily analyze. आप खुद भी एनालाइज करोगे कि ये तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन डेटा साइंस. ओके, तो वेयर इज योर बिजनेस इनसाइट्स इज देयर. आप सिंपल जो डैशबोर्ड डिजाइन करोगे, सिंपल जो मैंने बोला ना ट्रैकर्स जो आप डिजाइन करोगे फॉर द बिजनेस एनालिसिस पर्पस, उनके लिए वी यूज एक्सेल. ओके, गूगल स्प्रेडशीट, एंड इसको हम ट्रेडिशनल फॉर्मेट पे बोल सकते हैं. एंड व्हेन वी आर प्रिडिक्टिंग, जैसे मैंने बोला ना कि आई विल गिव यू सम नॉलेज अबाउट द टारगेट डिसाइडिंग. होता है, सेल्स में होता है, फाइनेंस में भी होता है, हर जगह होता है. लाइक फॉर एग्जांपल मेरा इस क्वार्टर 10,000 का सेल किया. ठीक है, हाउ कैन आई डिसाइड कि नेक्स्ट क्वार्टर मेरे को अपने जो सेल्स पर्सन हैं उनको टारगेट कितना देना है, कितना इंक्रीज करना है. ऐसा तो इंक्रीज नहीं कर सकता, इस साल 10,000 किया है कोई बात नहीं, अगले क्वार्टर में 20,000 करना, नहीं, ऐसा नहीं होता. वी हैव अ प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर मॉडल टू इंक्रीज द टारगेट. ओके, क्लियर कि कैसे टारगेट करना है हमें. सो दिस इज द पॉइंट कि अगर आपको डेटा साइंस सीखना है, वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं. ओके, हार्डकोर कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा हैक्टिक है. इट्स वेरी इजी, बहुत आसानी से प्रोसेस कर लोगे आप. नेक्स्ट वन इज डेटा आर्किटेक्ट. आर्किटेक्चर इज व्हाट, आर्किटेक्चर इज व्हाट कि आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, देयर इज सम सर्टेन रूल्स, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड एंड द मॉडल्स टू
लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कैसे हमारा वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा, कैसे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कोई डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूट कर सके. दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा आर्किटेक्चर. सो दिस इज एन काइंड ऑफ हाई लेवल फॉर्मेट्स इन द सेंस कि ये एक पोजीशन होते हैं कंपनी के अंदर. दैट वन इज डेटा आर्किटेक्ट. So who decide the pipeline, who decide the each and everything, how data is processed, how data is extracted from the particular database, particular storage, and make it some this process or this flow, make it very easy going. Okay, बहुत easily, बहुत आसानी से वो process हो सके. उसके लिए we are going to study about the data architecture. But this is an part of the data science. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, जो हमारा पार्ट होता है, मतलब जो हमें करना पड़ता है एज अ डेटा एनालिस्ट, दैट इज कॉल्ड एन डेटा प्रोसेसिंग. डेटा प्री प्रोसेसिंग इज व्हाट, कि आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है, राइट? किसी ना किसी लोकेशन पे आपका स्टोर होगा. लाइक यू आर यूजिंग शेयर पॉइंट, यू आर यूजिंग क्लिकसेंस, यू आर यूजिंग सम डेटा वेयर हाउस, क्लाउड सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट डाटा. ठीक है, आपको वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? वहां से डेटा आपको फैच करना, मतलब निकालना है. सो यू आर extract the particular data and then you can clean your data. Cleaning is what? There is some error, there is some unnecessary data is available in your data set, there is some like different formulas, wrong formulas is there, null values, void values. ये सब जो चीजें होती हैं, we need to figure out each and everything. So data cleaning is the most important section in the whenever we are processing the data. After that, you can see the diagram. After that, you can process your data in a different model. This particular section, जिधर मेरा red dot आपको दिख रहा होगा, training data, new data, learning model, trained model, core model, evaluate model. So this particular section is basically is related to the what? Machine learning part. But अगर मैं data analysis के basis पे भी बात करूं, this is very important. We are just, this part is also included for the data analysis purpose. But after that we move to the business insights only. But अगर आप machine learning के बारे में बात करोगे तो we are doing some different thing. जैसे एक फैक्ट्री में लेस का पैकेट पैक हो रहा है, ठीक है? एक फैक्ट्री में क्या पैक हो रहा है? लेस का पैकेट पैक हो रहा है. सो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि ये लेस का पैकेट 100% मार्केट में जाने के लिए? सो होता क्या है, जैसे 100 पैकेट मैंने आपके बनाए, आई डिवाइड 2 पार्ट्स, 80 पार्ट्स इन द न्यू डेटा एंड 20 पैकेट्स इन दी व्हाट? मेरे 20 पैकेट्स किसके अंदर गए? ट्रेनिंग डेटा में गए. ठीक है, तो मेरा जो टेस्टिंग डेटा होता है, टेस्टिंग डेटा मतलब टेस्ट करते हैं ना कि एग्जैक्टली जिस एफिशिएंसी, जिस मॉइस्चर में वो डेटा मतलब वो लेस पैक होना चाहिए उसी फॉर्मेट पे है, तभी हमारा लॉट मार्केट में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. तो दिस इज अ पार्ट कि किस तरीके से हम मशीन लर्निंग मॉडल को भी इसी तरीके से साइड बाय साइड ट्रेन करते हैं, ताकि वो मॉडल को इजीली इवैल्यूएट कर सके, या फिर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आप आसानी से उस डेटा का एग्जैक्टली प्रेडिक्शन जो है वो 95 to 98% आप एक्यूरेसी जनरेट कर सको उसके अंदर. ओके, दिस इज अ पार्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, आपके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एआई क्या है आपके अकॉर्डिंग? हेलो हेलो, यस हरनीत, हरनीत आर यू देयर? हेलो, am I audible? Hanji, you are audible. I think Harneet is not okay. Rinky, you don't have any idea. Harneet, are you there? Okay, I tell you, artificial intelligence is what? Self-learning model. Okay, self-learning model is what? Whenever you are thinking कि आप कहीं walk कर रहे हो,
एंड रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो सिंपली, राइट? सो कभी कभी क्या होता है, यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन दैट, देयर इन सम स्पीड ब्रेकर, ठीक है, वहां पर एक स्पीड ब्रेकर अवेलेबल है। आप फर्स्ट टाइम गए, बहुत स्पीड में गाड़ी निकाली, आप जंप कर गए उस पर से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप निकले, आपका माइंडसेट जो है वो सेल्फ लर्निंग मॉडल होता है, यानी कि वो भी एक एआई है। वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ लर्निंग करके रख लेता है, यस मैं कल इधर से निकला था एंड देयर इज एन स्पीड ब्रेकर। योर माइंड इज कंटिन्यूअसली गिव यू कंप्लीटली सिग्नल, यस मेरे को यहाँ पे स्टॉप करना है। सो एआई इज आल्सो वर्किंग लाइक दिस। एआई इज नॉट लाइक दिस, जैसे अगर आपने बोला कि एलेक्सा को मैंने बोला कि प्ले सॉन्ग, दिस इज एन एआई, नो, दिस इज जस्ट एन मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल। वी आर जस्ट पुटिंग सम वर्ड्स और वो क्या करेगा, वो ऑनलाइन सर्च करके उसको प्ले कर देता है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट, आपका एलेक्सा जो है वो डेली बेसिस पे आपकी बातें, आप जो बोल रहे हो वो सारी चीजें वो कलेक्ट करेगा एंड देन इट प्रोसेस द डेटा एंड वो अपने क्लाइंट को या जो भी सपोर्टिंग सिस्टम है उनको फॉरवर्ड करता है एंड यू कैन सी अपने फोन के पास में डेली बेसिस पे आप बात करना कुछ भी, ठीक है। थोड़े दिनों बाद आपको उससे रिलेटेड रील आनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एन एआई पार्ट, ठीक है। सेल्फ लर्निंग मॉडल उन्होंने डिजाइन कर रखा है, आप कुछ भी बोलोगे, दे आर जस्ट योर दैट पर्टिकुलर मॉडल इज एनालाइज योर वर्ड्स एंड उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन चालू कर देता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एआई। सेल्फ लर्निंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी मार्केट में अवेलेबल, टेस्ला का तो आपने नाम सुना ही है, महिंद्रा की भी कार आ चुकी है, ठीक है। Next one is data analysis. Data analysis is just only the business insights. You need to extract the business insight from a particular data. आपको insights बनाने, you can create your data like dashboard, matrix, each and everything. Sorry, this is part of what, data analysis, and it's very easy. And data analysis we cover statistics, because statistics is what, descriptive statistics. तो बेसिकली मैथ्स जो रहेगा वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, व्हेनेवर यू आर प्रोसेसिंग विद द डेटा एनालिसिस ओनली, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट। इफ यू आर वांट टू लर्न अबाउट द व्हाट, मशीन लर्निंग पार्ट, सो आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी सीखना पड़ता है फॉर द प्रेडिक्शन मॉडल, ओके। Next one is data visualization. So we use some tools in the market like Tableau and Power BI for the data visualization part, and it's very important. So whenever you want to design an interactive dashboard to the client or to the customer or to the directors and VPs in in a company, or if you want to generate interactive presentation or interactive reports for the management, for the client, for the market purpose, so you need to use what, I also recommend like a Power BI, Tableau type of tools, okay। So ये टूल्स आपको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा डिजाइंस, कलर कॉम्बिनेशंस एंड मॉडिफिकेशंस आपको करने में हेल्प आउट कर देता है, ओके। सेकेंड, व्हाई बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। सो इसके बारे में मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो इन द मार्केट देयर इज अ लॉट ऑफ जॉब इन द मार्केट रिलेटेड टू द डेटा साइंटिस्ट, और एंड दिस पर्टिकुलर जॉब इज 100% सिक्योर्ड। लाइक इंडिया में बोलते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब इज सिक्योर्ड। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं यहीं पे एक ही चीज बोलता हूँ, डेटा साइंटिस्ट जॉब जो है ना, डेटा साइंटिस्ट की जॉब, वो एक गवर्नमेंट जॉब वाले से ज्यादा सिक्योर्ड है। वो कभी भी छोड़ के किसी भी कंपनी में जा सकता है विदाउट एनी इशू, अगर उसको डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ भी पार्ट बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। क्यों? रीजन इज वेरी इजी, बिकॉज डेटा कभी खत्म नहीं होगा और विदाउट डेटा किसी कंपनी का काम नहीं चलता है, ठीक है। मार्केट में इसकी शॉर्टेज रहती है हमेशा, ऐसा नहीं है कि आज है, हमेशा आपको ये शॉर्टेज मिलेगी, ठीक है। वेयर डू यू फिट इन डेटा साइंस? तो डेटा साइंटिस्ट में देखो काफी सारे पार्ट होते हैं, तो मेरे पास है ना तीन, मैंने ब्रॉड जॉब्स आइडेंटिफाई करी थी, तीन जॉब्स जो मैंने आइडेंटिफाई करी थी। द फर्स्ट वन इज द डेटा साइंटिस्ट। सो डेटा साइंटिस्ट के लिए मैं आपको बोलूंगा कि लाइक फॉर एग्जांपल्स आपका मास्टर्स होना भी जरूरी है, एंड द सेकंड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
कि आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स नहीं कर रहे, आप बैचलर्स में हो, तो आपका स्किल सेट बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक फॉर द डेटा साइंटिस्ट पर्पस। ओके, यू नीड टू प्ले विद द डेटा, और आपको डेटा के साथ में खेलना आना चाहिए, एंड यू नीड टू एंजॉय सम नंबर्स कैलकुलेशंस, उसको भी आपको एंजॉय करना पड़ेगा। देन यू आर suitable and fitted for this job. Okay, second one is data analysis. ये जॉब बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होती है, एंड द रेंज ऑफ द सैलरी एज कंपेयर टू डेटा साइंटिस्ट इज लिटिल बिट लो, थोड़ा ऐसा ही लो होता है, ज्यादा लो नहीं होता। एवरेज सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 5 to 6 लाख इन इंडिया। ठीक है, बाहर का मुझे पता नहीं। ठीक है, बाहर का इन द सेंस में अगर आपको बोलूं, लाइक जो मैंने इसमें फिगर आउट ले रखा है, दिस इज एन एवरेज फिगर, $65,000 और $70,000 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज एन एवरेज प्राइस, आप उसको पता कर सकते हो ऑन Glassdoor और वेन एवर यू आर इन द मार्केट, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, बट इन इंडिया यू कैन स्टार्ट this job from 5 to 6 lakhs. Okay, and you need to cover up for this Python, SQL, Excel and SQL is the base, and this is very important and required in the market right now. इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, and Excel is the motherboard of data analysis field. Okay, सेकेंड वन इज एनी BI टूल। आप पावर BI, टैबलू किसी पे भी जा सकते हो, बट आई रिकमेंड एज पर द इंडियन मार्केट दैट पावर BI इज मोर पावरफुल देन टैबलू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी में आपको ये चीज मिल जाएगी। And the third one is Python. That one is the programming language, which is very important. So whenever you are working for the business part of team, marketing part of team, finance part of team, customer segmentation, customer analysis part of team, you need to learn about the Python. I am not recommend any other programming language. But whenever you are moved to the scientific calculation यानी कि research part में आप जा रहे हो, R will help you in that case. ठीक है, R आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा। और SAS जो होता है वो मोस्टली बैंकिंग डोमेन में ज्यादातर यूज होता है। दिस इज एन टूल और स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली ये, बट इस पे एक SAS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। ओके, सो वो हम इसके अंदर साथ में यूज करेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं SAS वाले टूल पे। फर्स्ट वन इज द SAS बेस, एंड इट्स काइंड ऑफ एक्सेल फॉर्मूलास टाइप ऑफ थिंग, बट उसके सिंटैक्स, उसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एंड द सेकंड वन इज SAS मैक्रो, व्हिच इज वी आर यूजिंग VBA मैक्रो इन एक्सेल, तो आप SAS के साथ में भी मैक्रो यूज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज, मैंने बोला ना, SQL इज द बेस पार्ट, सो SAS SQL इज ऑल्सो यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो आपको कोई भी चीज एक एडवांस और एक बेस आपको कंप्लीट करना होता है। ओके, तो आप देखोगे एक कॉमन पार्ट है सारी चीजों में, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, So what is R? Like what language is R? R is a programming language. You need to use RStudio for this. So, but I'm not recommending you R just because of that you are working on the business team. ठीक है, you are working Yeah. with the business team. So आपको Python use में आएगी। R is basically used for the research part. So like if you are working for the physics analysis, chemistry, physics, and some these kind of things, you need to process with the R. Okay. R is Okay. also working in the market. इसकी भी demand रहती है, but if I'm talking about the demand, तो Python is the most powerful language. Okay. Okay. Why I'm suggesting Python? Because you have first position is data scientist. Okay. Mm-hmm. Second one is data analysis, data analyst. Okay, data visualization, business analyst. Yeah. Python is the common programming language. And the third one is data engineering. This is a core IT department in any company. Okay. So Python is the most important programming language for this department also. So in case कभी आपको इस particular part में interest आता है, if you are learning data analysis, कई बार होता है the people are more interested in this. हाँ, इसका salary भी बहुत ज्यादा high होता है as compared to others. Okay. तो काफी बार क्या होता है, जैसे मैं पाइथन स्टडी करवा रहा हूँ किसी को, तो पर्सन इज वेरी कंफर्टेबल इन पाइथन एंड he or she can understand the Python programming concepts on a base level. Logics अच्छे हैं, they are moving to the data engineering part. They learn about the some cloud system, okay, some database तो हम पढ़ते हैं,
और क्लाउड उन्होंने सीखा एंड देन मूव टू दी मार्केट. ओके, डेटा इंजीनियरिंग मार्केट में भी वो अपना करियर बिल्डअप कर सकता है. Okay. Okay, this is the point. That's why I suggest Python because market में demand अच्छा है and the area जो है ना अगर मैं बोलूँ वर्किंग एरिया बहुत ब्रॉडर है इसका पाइथन का. आर का उतना ब्रॉड नहीं है. ठीक है, Okay, sir. Thank you. अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी. Okay. तो एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस दोनों में एक छोटा सा पार्ट का डिफरेंस रहेगा. दो चीजों का डिफरेंस होता है. द फर्स्ट वन इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. ओके, सेकंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. मतलब प्रिडिक्शन मॉडल जो हम लोग जनरेट करते हैं उसके लिए जो एल्गोरिथम है, जो मैथमेटिक्स हम लोग यूज करेंगे, दैट मैथमेटिक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेटा एनालिसिस फील्ड. डेटा एनालिसिस फील्ड में आपका पाइथन कवर अप होता है. ओके, सेकेंड वन इज पाइथन से रिलेटेड पैकेजेस आपके कवर होंगे. पाइथन, numpy, pandas, matplotlib, seaborn. Okay, scikit-learn we also learn about the logistic regression and linear regression in this, and Python data structure is also cover up in this. Okay, तो ये सारी चीजें हम Python programming में सीखेंगे. And we learn about when we are processing with the Power BI. ओके, मैं पावर बीआई को कंसिडर करके चलता हूँ अभी हाल फिलहाल. तो पावर बीआई में वी आर लर्निंग अबाउट द पावर क्वेरी एडिटर. ओके, सेकेंड वन इज पावर बीआई डेस्कटॉप. थर्ड वन इज पावर बीआई सर्विस. ओके, Power BI service is kind of the cloud version where we deploy our dashboards, where we deploy our securities. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे. DAX, this is most important part. We learn about the basic DAX. Okay, data analytical expressions and advanced DAX. Advanced DAX बोलूं या फिर मैं simple language में बोलूं तो complex DAX queries हम लोग सीखेंगे. Okay, calculations. And the last one is data modeling. तो data modeling वाला जो part रहता है ना, I also cover up in the SQL and Power BI. ठीक है, मैं दोनों जगह इसको कवर अप करूंगा बिकॉज दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. आपको एक्सेल में भी इसके यूजेस बताऊंगा. तो हम लोग कई बार कुछ ऐसी चीजें निकालते हैं, कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट कैलकुलेशंस हम लोग निकालेंगे जो कि आप बहुत इजी गोइंग वे में नहीं निकाल पाओगे. बट व्हेन वी आर परफॉर्मिंग मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, सो हम इन सब चीजों को भी बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, so when we are processing with the SQL, what we are going to cover in SQL, the first one is basic. Okay, we also learn about the database designing, ER diagram and database modification. Okay, because कई बार होता है SQL में डेटा एनालिसिस पर्पस पे हम लोग ये सब चीजें डिस्कस नहीं करते बिकॉज हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट आप मेरे साथ में ट्रेनिंग करोगे, मैं आपको ये सारी चीजें भी बताऊंगा बिकॉज मैं डेटा भी आप ही से बनवाऊंगा. ओके, अपलोडेशन भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी सारी. एंड द सेकेंड वन इज select part. In select part we are learning, that means intermediate queries मैं उसको बोलूंगा. We are learning about the joins, having conditional data extraction, okay, group by, and when we are moving to the advanced part, we are learning about the Windows function. We are learning about the stored procedure. Stored procedures are very helpful. जैसे कि मैंने आपको बोला ना, कुछ लोग डेटा इंजीनियरिंग में चले जाते हैं बिकॉज वी आर कवरिंग ऑल्सो द स्टोर्ड प्रोसीजर इन द डेटा एनालिसिस फील्ड. सो यू आर ओपन योर market as per your skill sets. Okay, after that we move when I talk about the Excel, so we start Excel from the base. Okay, and I'll give you training on this particular part. ठीक है, मैं ऐसे ही किसी का इंटरव्यू ले रहा था, उसमें मैं काम करवा रहा था तो वो डला हुआ था. So guys, we are learning about this Excel, and this Excel is which Excel I am using. That one is 2021 because there is a lot of formulas which is available in 2021 or 365. Okay, which is not available in 2019 and deprecated है. वो deprecated नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा क्या, यूज नहीं होते, लॉन्च नहीं हुए थे. अभी वो लॉन्च हुए.
तो देयर इज अ लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स इन दी मार्केट, ठीक है। काफी सारे अल्टरनेटिव्स मैं आपको बता दूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा ऑन अ बेस लेवल। बेस लेवल इन द सेंस जो पहले हम लोग यूज करते थे, स्टिल अभी भी वही चीज यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वीपीज हैं, दे डोंट नो अबाउट दिस फॉर्मूला। ओके, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता वो कुछ नया फॉर्मूला सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके उसको कुछ हैंड्स ऑन करें उस पर, ठीक है। वो अभी हम लोगों के हाथ में रहता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके पर्पस पे हम लोग सीखेंगे वो सारी चीजें, जैसे इंडेक्स मैच हो गया, ठीक है, राइट लेफ्ट मिड फंक्शंस हो गए, हाउ वी एक्सट्रैक्ट द पर्टिकुलर नेम एंड सरनेम। तो वो सारी चीजें तो हम सीखेंगे, बट आई विल गिव यू अ कंप्लीट एडवांस पार्ट। सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर अ डेटा इन अ क्विकेस्ट फॉर्मेट, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। वो सारे फॉर्मूलास आप उसको यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एन एडवांस एक्सेल, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलास, दिस इज कॉल्ड एन एडवांस एक्सेल। एंड बेस एक्सेल का जो बेसिक एक्सेल जो होता है, बेसिक एक्सेल इन द सेंस हाउ वी एंटर द डेटा, बॉर्डर्स वगैरह कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें कैसे बनती है, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको लर्निंग टाइम पीरियड में बताता जाऊंगा। वी आर नॉट spend much more time on the base, just because of that it's completely basic, ठीक है। एंट्रीज वगैरह करना, सेल क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, we cover up 2 to 3 classroom on that, then we move to the function part, okay। And when we are talking about the advanced or an export level, we also learn about the graphing। so अगर कोई ग्राफ मेरा डिजाइन हो रहा है, हाउ कैन आई मॉडिफाई द ग्राफ। अगर मुझे ग्राफ मेरा बन चुका है, उसी ग्राफ के अंदर मेरे को कोई डेटा बढ़ाना है, तो वो सारी चीजें मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे उसको रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे उनके पार्ट्स को मैं एडिट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, ओके। कस्टमाइज फॉर्मेट जो बोलते हैं, तो दैट वन इज द पार्ट ऑफ चार्टिंग, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, चार्ट्स वगैरह के ऊपर वर्कआउट कैसे किया जाता है, पिवोट के फॉर्मेट पे हम कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे हम उन सब चीजों को डिजाइन करते हैं। एंड वी आल्सो लर्न अबाउट द डैशबोर्ड डिजाइनिंग एंड एक्सेल, जो कि हम पावर बीआई में करेंगे, बट एक्सेल में भी हम डैशबोर्ड डिजाइनिंग करेंगे, ओके। एंड एक्सेल में भी वी आल्सो लर्न अबाउट द पावर क्वेरी एडिटर। थोड़ा सा यूआई में डिफरेंस आएगा पावर क्वेरी एडिटर में, एज लाइक पावर बीआई के अंदर जो पावर क्वेरी एडिटर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। तो मैं एक बार टूल आपको दिखा देता हूँ, आपने शायद देखा नहीं हो, तो आपको मैं टूल दिखा देता हूँ, व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर, शायद कभी देखो, ओके। ये डेटा पार्ट पहले नहीं होता था एक्सेल के अंदर, अभी आपको डेटा पार्ट भी अवेलेबल मिल जाता है। दिस इज अ टूल विच वी लर्न टू क्लीन अप द डेटा। मैं एग्जैक्टली आपको एक्सेल पे तो बता दूंगा, बट रियल टाइम में वी आर यूजिंग दिस टूल, ठीक है, मार्केट के अंदर। और ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, जरूरी नहीं है, कंपनी आपको रिकमेंड नहीं करेगी, बट आई रिकमेंड यू कि आप इसको यूज करो। इससे क्या होता है कि जो डेटा क्लीजनिंग में आप टाइम स्पेंड करते हो, लाइक 15 मिनट्स आपको लग रहा है, यहाँ मैं 5 to 10 मिनट्स में इसको कंप्लीट करके निकल लूंगा, और मैं अपना पूरा डेटा भी इसी से बना लूंगा। तो ये क्लिकिंग इवेंट बेसिस पे आपको पूरा डेटा बहुत आसानी से कवर अप हो जाता है। एंड दूसरा, वी ऑल्सो लर्न अबाउट द डेटा सोर्स कनेक्शंस। तो पहले एक्सेल में हम हर सोर्स कनेक्ट नहीं कर पाते थे, अभी देखो एक्सेल के अंदर आपके पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, 100+ सोर्सेस आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप एज़्योर कनेक्ट कर सकते हो, वेयर हाउस कॉन्सेप्ट भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। शेयर पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, सेल्स फोर्स आपके पास अवेलेबल है, एंड बिग डेटा इज ऑल्सो देयर, बिग क्वेरी इज ऑल्सो देयर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेटाबेस इज अवेलेबल which you can connect, and flat file formats is also there, वो भी आप इसके अंदर कवर अप कर सकते हो। एंड इवन वन मोर थिंग, दिस इज द मोस्टली बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, इसकी रियलिटी, इसकी रियल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है शेयर पॉइंट फोल्डर को कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज क्या होता है ना, काफी सारी फाइल्स हमारे शेयर पॉइंट फोल्डर में होती है, एंड वी नीड टू कनेक्ट इट। एंड द सेकेंड वन इज, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेटा मॉडल। तो मैंने आपको बताया था कि वी आल्सो डिस्कस अबाउट द डेटा मॉडल। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ एनालिसिस इज व्हाट, फोरकास्ट शीट हम देखेंगे, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। दीज आर द न्यू पार्ट एंड एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल विच इज नॉट अवेलेबल प्रीवियसली, पहले आपको कभी नहीं मिलता था, ठीक है। कभी भी आप देखोगे आपको ये सारी चीजें पहले नहीं मिलती थी, अभी आपको मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल है। How skills are needed? What skills are needed? I think that's your question, Rinky. कौन कौन सा स्किल रिक्वायर्ड है?
डेटा एनालिटिक्स में आपको जितना मैंने स्किल सेट बताया, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेटा साइंस ऑन अ बेस लेवल. दिस इज योर फर्स्ट लेवल एंड फर्स्ट पार्ट. एंड अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं, व्हाट स्किल सेट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, तो वो मशीन लर्निंग वाला पार्ट होता है जो आपका उसके अंदर इंक्लूड होता है, एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है जो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है. And this is kind of advanced part. We are designed that kind of model. This is these models are predicted. Like for example, कोई चीज 10 रुपए की बेच रही थी, आगे 5 साल बाद वो कितने की हो जाएगी. This is called a prediction model. Okay, we are analyze the historical data, and once we process the historical data, then we decide what are the next output or next calculations market का क्या होने वाला है. On the basis of historical data we will decide. Okay, this is the part. And data analytics की बात करें, we are learning about, we start from the Excel. This is a mother part of the data analytics field. वहां से हम start करेंगे, then we move to the sequentially. Okay, so within a 1.5 month you will be prepared for the market, because within 1 to 2 months के अंदर we cover 3 things: Excel, SQL and Power BI. और मार्केट में स्टैंड अलग करने के लिए आफ्टर दैट वी आर लर्निंग अबाउट द पाइथन. वंस यू कंफर्टेबल इन दीज टूल, और इस पे आपको एटलीस्ट 3 डोमेन्स पे आपको काम करना पड़ेगा इन तीनों टूल्स के साथ में. Like whenever you are processing Excel, so I'll give you a sales data, I'll give you marketing data, I'll give you a customer segmentation of financial data. So you need to analyze that data. You have to prepare some dashboard and deliver to me. आपको मेरे को दिखाना है, and we are just figure out कि और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, and what are the challenges. कि मैं हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ और आए कि मैं आपको बोलूँ कि ये भी एक चैलेंज है, ये मेरे को चाहिए, जो मेरे को और किसी के डैशबोर्ड में अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट दिस इज एन रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करनी है. तो वो सारी चीजें हम प्रोसेस इसी तरीके से करते हैं. ओके, कोई ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ. मेरे साथ के प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे विच इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड और बन चुके हैं. वो प्रोजेक्ट सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यूज करूंगा हाउ वी प्रोसेस द प्रोजेक्ट, कैसे हम प्रोसेस करते हैं. बट जो प्रोजेक्ट मैं आपको असाइन करूंगा, दिस इज एन कम्प्लीटली रैंडम और रियल टाइम बेस. रियल टाइम और रैंडम से मेरा मतलब ये है कि मैं डेटा आपके सामने डाउनलोड करूंगा एंड आई जस्ट गिव यू माय ओन रिक्वायरमेंट. ये डेटा है और मुझे इस डेटा में से ये रिक्वायरमेंट है, वो आपको प्रोसेस करके देनी है. यू नीड टू राइट डाउन दीज रिक्वायरमेंट समवेयर, और आई मेल्ड यू ये रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको प्रोसेस करके देनी है. दिस इज आवर प्रोसीजर जो एक्चुअली हम लोग कंपनीज में फॉलो करते हैं. ऐसे ही होता है कंपनीज के अंदर. ये डायरेक्टर्स आपको आके बोल देंगे कि आई नीड दिस डेटा, और ये डेटा आपको कलेक्ट करना है, फाइंड आउट द सोर्सेस एंड एक्सट्रैक्ट, prepare the matrix, prepare the dashboard, whatever your format. मेरे को crisp and simple format में वो डेटा मेरे को समझ में आ जाए, ऐसा मेरे को बना के दे दो. This is an requirement. Same format I'll process with you. तो आपको ऑलरेडी माइंडसेट, आप मार्केट के अंदर जाओगे, योर माइंडसेट इज ऑलरेडी सेटल. ठीक है, मार्केट के हिसाब से आपको पता होगा रिक्वायरमेंट लेना कैसे है और कैसे हमें उसको डाइजेस्ट करना है. तो वो प्रैक्टिस हम आपको स्टार्टिंग से रखेंगे. ओके, क्लियर हुआ अभी सारी चीजें कैसे हम प्रोसेस करने वाले हैं. एक्सेल में भी सिर्फ एक्सेल नहीं पढ़ेंगे, एक्सेल में भी बहुत सारी चीजें हम स्टडी करेंगे. ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन गाइस? Yes, I have a question that Yes. how are we gonna start? Like we're gonna start from Excel and SQL. Yes. If you want to go with both simultaneously, we can go with that. But I'll suggest you, first of all, you process Excel at least 15 days. Like advanced part, you will be cover up. तो पहले advanced part तक आप थोड़ा बहुत cover up कर लो. Once you clear about the data, if you data understanding आपका अच्छा हो जाएगा Excel में कि कैसे हमें डेटा को क्लीन अप करना है, कैसे प्रोसेस करना है, देन आई Okay. सजेस्ट यू जस्ट गो विद द सीक्वल. तो आपको बहुत इजी गोइंग रहेगा कि आप बहुत आसानी से आप सीक्वल में समझ जाओगे, बिकॉज मेरे को ये नहीं बताना होगा इस डेटा के साथ में करना क्या है. Okay. यू ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दिस. तो एक्सेल, मेरा पर्पस क्या है एक्सेल को पहले पढ़ाने का, दैट इज 2 फॉर्मेट्स, बेसिकली
टू थिंग्स हैं जो मेरे दिमाग में सेट रहती हैं हमेशा कि आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, कैसे हमें डेटा देखना है, किन चीजों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा एक्सेल के अंदर। सेकेंड वन इज एक्सेल इज द मदर पार्ट। जब भी आपके पास डेटा आएगा वो एक्सेल में आएगा सबसे पहले, सीक्वल में जब आएगा तब आएगा, बट एक्सेल में आपके पास ज्यादातर प्रोसेस हो रहा होता है। ओके, सो स्टार्ट विद द एक्सेल। वंस यू कंप्लीट पीवोट, लुकअप एंड रेफरेंसेस, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ठीक Okay. है चीजों को सीखने में। सबसे ज्यादा टाइम हमारा स्पेंड होगा प्रोजेक्ट पे, ओके, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा टाइम स्पेंड इसलिए लगता है क्योंकि हमें दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत सारा, बहुत टाइम Okay. स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी प्री डिफाइन वाली कि ये था, इसको इस तरीके से बना के देना है, नहीं। Mhm. उसमें आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, खुद डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसमें हम लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। द प्रोजेक्ट इज मेजर पार्ट for Okay. whole data So, analytics training. so Yes, classes will be held every day, and फिर पहले हम Excel से start करेंगे, and then SQL, and then Python. We will go with like Power that. BI. I suggest Power BI. Power BI. Yeah. If your requirement is Python, then we will switch. But I'll suggest you first of all complete the two data sources. That one is SQL and Excel. Okay. पहले आप वो cover up करना, because these are the base data sources which we are using on an offline basis. Just because of that, we don't have any live access. Okay. कोई भी ऐसा नहीं होगा क्लिक साइंस है, शेयर पॉइंट है या कोई सी जगह से हम डेटा ले रहे, तो वो चीज नहीं है हमारे पास, राइट? सो वी नीड टू प्रिपेयर आवर डेटा सोर्सेज वेरी स्ट्रांगली. Then we move to the Power BI. You can, I'll give you a chance to choose any one of them, whatever in which you want to process first of all. We can process with the Python, we can process with the Power BI or any BI tool. Okay. Okay. Mhm. Okay. Any other question, Harvit? No. So Okay. classes will be online, so it's okay that I will take it online, or like, for the understanding, or should I take it offline? Offline अभी तो आप यूएस में हो ना? No, अभी मैं इंडिया में हूँ अच्छा, for अभी some इंडिया में time. हो. Yeah. Okay. So I'm available for Saturday, Sunday. If you want to visit, we can go for this. आप hybrid mode पे चल सकते हो, कोई इशू नहीं है. So there's no problem, right? That if I will take online classes, because a SQL, there's like coding and stuff. So ना, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी इजी, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा. दैट्स माय गारंटी. बट आपको अपनी साइड से एक ही गारंटी देनी पड़ेगी. दैट वन इज आई विल गिव यू असाइनमेंट्स, यू नीड टू प्रोसेस दिस. yeah, okay. Okay, and you need to communicate continuously in the sense like आप क्लासरूम में हो, open your mic and raise your question. Okay, Okay. that is very important. अगर आप सिर्फ क्लासेस लाइक होता है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड जस्ट लिसनिंग, ओके, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा. बट आप Yeah. क्वेश्चन प्रोसेस करोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे एंड यू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ बेस लेवल, सो आई विल गिव यू आंसर फॉर दैट. That one will, that part is will help you. Okay, वो आपको ज्यादा लर्निंग देगा. So what's going to be the strength of the class? Like how many students they're going to be? It depends on the timing. So if you are processing like 9 o'clock, you will get most of the working person in your classroom. Approximately I'll take only 4 to 5 student only, just because of that concentration कि वो 4 से 5 That's लोग मैं concentrate कर सकता हूँ. बट ज्यादा होते हैं ऑनलाइन में तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. ऑफलाइन में आई कैन हैंडल मोर देन 10 प्लस, बट ऑनलाइन में our strength is like 4 to approximately 4 5. to 5. Yeah, Yeah, okay. कभी Okay. कभार 6-7 हो जाता है, बट 4 to 5 इट्स हम इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं. Yeah, okay. ओके, Okay. यस रिंकी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, डाला हुआ है क्वेश्चन. ओके, कोई और क्वेश्चन रिंकी आपकी साइड से? ओके, प्लीज ट्राई. आप जब भी क्लास लो रिंकी, प्लीज आप ट्राई करना कि आपका माइक वर्किंग में हो, क्योंकि चैट में क्या होता है ना कि काफी सारी चीजें आप एक्सप्लेन करके नहीं पूछ सकते जो आप वर्बली पूछ सकते हो मेरे से. तो दिस इज अ पार्ट कि आप उसको ट्राई करो कि अनम्यूट रहो. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन गाइस? आई थिंक वी हैव ओनली 3 minutes फॉर दिस मीटिंग. No, sir. Okay, now questions.
ठीक है, तो once I get the complete information from Vinit कि आप लोगों का क्लासरूम कब से स्टार्ट करना है एंड ही शेड्यूल योर क्लासरूम टाइमिंग, ठीक है, शेड्यूलिंग मेरे पास आने के बाद I'll start from the Excel. Okay. Okay. तो मेक श्योर इफ यू आर प्रोसेसिंग विद द पावर बीआई, अगर आपका माइंडसेट है पावर बीआई के साथ में प्रोसेस करने का, तो आप प्लीज विंडोज लैपटॉप यूज करें फ्रॉम डे वन, बिकॉज पावर बीआई मैकबुक पे रन नहीं करेगा, ठीक है. Okay. यू आर प्रोसेसिंग विद द टैब्ल्यू तो वो रन कर जाएगा, बट फॉर द मार्केट रिक्वायरमेंट आई सजेस्ट पावर बीआई इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टूल. ओके Okay. ओके गाइस, तो आप विनीत से बात कर लेना फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड क्लासरूम स्केड्यूल. Okay, sir. Thank you. ओके थैंक यू रिंकी. Thank you. बाय बाय.